What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Monday, 6th of April, and finally after 6 consecutive gap down openings on Monday, we finally had a flat to green opening. And इतना बड़ा gap up भी नहीं था, 22,800 के आसपास markets open हुए, but within the first 5 minutes the markets actually slid back within the yesterday's range. And first 1 hour में markets were little bearish, 22,550 के आसपास low बनाया, but वहां से एक double bottom kind of a pattern बना के markets gave a sharp 450 point rally. And markets फिलहाल 23,000 के आसपास close दे रहे हैं, and that means from the bottom of 22,200 markets have given a recovery of almost 800 points. Whether the bottom is in place, nobody knows, because ऐसे 800 to 1000 point of recovery markets already last 2 हफ्ते में 2 बार actually दे चुका है, and every time people have tried to call the bottom, the markets have proved them wrong and a fresh low has been made. And in spite of this 800 point recovery, the market seems to be stuck in the anxiety mode, because अभी भी VIX 25 के आसपास होवर कर रहा है, and long term option contracts का जो premiums है अभी भी क्रश नहीं हो रहा है. And even now there is no clarity on the ongoing geopolitical tension, and even now the situation is pretty chaotic. On one hand, Trump is talking about the ceasefire and Hormuz being opened, and on the other hand he is issuing deadlines and issuing ultimatums, and in fact he's calling names. So the situation is as chaotic and as tumultuous as it can get. And tomorrow Trump is saying that they will be targeting the power plants, the desalination plants, and even the Kurg Island if Iran doesn't agree to open the Strait of Hormuz. So nobody knows what the Trump does, and at this point I don't think even Trump knows what he's gonna do. And as of now the markets are in a mode of jitter. So tomorrow is Nifty's weekly expiry, and straddle premiums जो है 360 पे close हो रहा है, which I feel that is not an appropriate pricing of risk, because last video में मैं कह रहा था कि 400 के नीचे जाना नहीं चाहिए था, because कम से कम 200 पॉइंट तो ओवरनाइट रिस्क हमको प्राइसिंग करना चाहिए. बट फॉर सम रीजन मार्केट्स आर सेइंग दैट इतना बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं खुल सकता, एंड वी आर सीइंग अराउंड 350 rupees close on straddle premiums. So when we open tomorrow, and if we don't open with a big gap up or a big gap down, most probably the straddles will be opening sub 200, and we got back to back wide range days, so that makes tomorrow's expiry a little tricky. So let's get to the terminal and let's see कल के expiry को हम कैसे navigate कर सकते हैं. So daily chart पे प्राइस एक्शन काफ़ी chaotic लग रहा है, because some day the market closes near its day's lows and the next day the markets open with a big gap up, and some days the market closes near the day's high and the next day we are opening with a big gap down, and 1000 points नीचे जाएगा और 800 points का पुल बैक देगा, 1500 point फिर से नीचे आएगा, then 1000 point का पुल बैक देगा. So काफ़ी choppy kind of a price action है, especially with a high option premiums. तो ना option buyers पैसे बना रहे होंगे, ना option sellers पैसे बना रहे होंगे, because it is not an easy price action to trade. And intraday price action and positional price action जो है काफ़ी contradictory kind में behave कर रहे हैं. And as of now we've got 2 back to back green candles, and apparently 22,200 जो है low जैसे दिख रहा है, but 2 हफ्ते पहले 23,000 भी ऐसे low जैसे दिख रहा था, and उसके पहले 24,000 भी low जैसे दिख रहा था. But every time the markets have proven the bottom callers wrong, and every time the markets have went on to form a new low. So अभी भी बड़े टाइम फ्रेम पे द मार्केट इज स्टिल ऑन अ सेल ऑन राइज काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, बट इंट्राडे में द रैलीज आर काइंड ऑफ ब्रूटल. तो कल भी लास्ट सेंसेक्स एक्सपायरी में भी आप देख सकते थे कि ओटीएम कॉल्स एक्चुअली स्पाइक्ड बाय ऑलमोस्ट 50 to 60 टाइम्स, एंड आज भी काफ़ी अच्छा एक ओटीएम कॉल्स में एंड एटीएम कॉल्स में काफ़ी अच्छा स्पाइक देखने को मिला है. एंड सो ऑनेस्टली स्पीकिंग द प्राइस एक्शन इज केओटिक, द प्राइस एक्शन इज कन्फ्यूजिंग. सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट गुड एंट्रीज, देन आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है काफ़ी ख़राब होने वाला है, एंड एट द सेम टाइम देयर इज no certainty of whether the price action is gonna get respected or not. Lower time frame पे जाएंगे तो yes, today markets थोड़ा flat open हुआ, and almost 250 point का एक fall देखने को मिला. And even if you notice, the first 45 minutes were also quite volatile. 200 points down, 200 points up, another 200 points down. Quite volatile, very hard to hold on to your positions during this phase. And उसके बाद markets ने यहाँ पे एक double bottom kind of a pattern बनाया. आप थोड़ा zoom in करके देखोगे तो you can notice that यहाँ पे एक बेयर ट्रैप भी हुआ. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट स्विंग था, फर्स्ट स्विंग पे मार्केट्स ने आया एंड वहाँ से एक बाउंस दिया, एंड फिर से उस स्विंग को तोड़ा, एंड इमीडिएटली एक विक कैंडल बना के यहाँ पे मार्केट्स ऊपर गया, एंड यहाँ से मार्केट्स ऑलमोस्ट 450 पॉइंट का एक वन वे रैली मार्केट्स दे चुका है, एंड वी आर क्लोजिंग समवेयर अराउंड 23,000 लेवल्स. अगर स्ट्रैडल की बात करें, आई वाज एक्सपेक्टिंग द मार्केट शुड नॉट क्लोज बिलो 400, बट 370 के आसपास स्ट्रैडल क्लोज दिया है, विच आई इन माई ओपिनियन इज प्रेटी अंडर प्राइजिंग ऑफ रिस्क, बिकॉज
you don't know like what Trump's gonna say, what he's gonna do. So markets कहीं पे भी खुल सकता है, कहीं पे भी open हो सकता है कल. So it is pretty daring of the markets to actually price in this kind of a premium, especially given what kind of geopolitical tensions we are actually dealing with. So this is what the markets are saying, and that is what the fair price according to the markets. So let's hope कल markets एक बड़ा gap up या gap down के साथ ना खुले, because अगर एक बड़ा gap up या gap down खुलता है, then most of the traders who went on with the short options, basically option sell करके गए हैं, again they'll get trapped, considering the fact that tomorrow is expiry and the gamma effect will be quite a lot. So price action trades की अगर बात करेंगे, 23,000 के आसपास markets ने close दिया है. Of course last 10 minutes में एक 50 पॉइंट का एक sell off देखने को मिला है, but this is just a normal price action. तो मैं consider करता हूँ कि markets 23,000 के आसपास क्लोज दे चुका है. सो टुमारो अगर इस प्राइस एक्शन को यकीन करना चाहिए, एंड इफ टुनाइट वी डोंट गेट एनी नेगेटिव न्यूज, देन देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट हम लोग फ्लैट से गैप अप खुलने का चांसेस ज्यादा है. तो अगर मार्केट 23,150 के आसपास अगर खुलता है, तो देन एनी पुल बैक टुवर्ड्स 23,000 लेवल एक पैटर्न ढूंढ के हम लोग यहाँ पे हम लोग एक लॉन्ग ट्रेड्स ले सकते हैं. लॉन्ग ट्रेड्स हम लोगों को कैसे लेना पड़ेगा, मैं ट्राई करूंगा 1:1 क्रेडिट स्प्रेड, बेसिकली एक बुल पुट स्प्रेड इनिशिएट करने के लिए ट्राई करूंगा, बिकॉज यहाँ पे 50-60 पॉइंट्स मार्केट्स वन सिंगल कैंडल पे नीचे आएगा, आपका स्टॉप लॉस को हंट करेगा. अगर आप नेकेड करोगे तो मल्टीपल टाइम्स आपका स्टॉप लॉस हंट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है. एंड आप देख ही रहे कि ओवर द लास्ट फ्यू एक्सपायरीज, द एक्सपायरीज हैव बीन ब्रूटल, एंड इवन आफ्टर हैविंग वोलेटाइल मॉर्निंग सेशंस देयर हैज़ बीन नो रिस्पाइट इवन ड्यूरिंग द आफ्टरनून सेशंस. 2 बजे के बाद भी मार्केट्स दोनों तरफ बहुत वोलेटाइल तरीके से बिहेव कर रहा है. सो आई विल बी काइंड ऑफ वॉकिंग इन टू द एक्सपायरी विथ अ लॉट ऑफ कॉशन. अभी मेरे को जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो नज़र आ रहा है, वन इज़ दिस 23,300 लेवल, एंड द नेक्स्ट रेजिस्टेंस वुड बी द राउंड नंबर 23,500 लेवल. अगर हम लोग 23,300 के आसपास अगर कल खुलते हैं, विच इज़ इन माई ओपिनियन स्लाइटली अनलाइकली, बट हम लोगों को प्लान करना पड़ेगा, बिकॉज लो प्रोबेबिलिटी थिंग्स ही ज़्यादा हो रहा है लास्ट एक महीने से. तो अगर 23,300 के आसपास ओपन होगा, तो देन probably the straddle will be still trading at 200, and 23,300 straddle would be the best bet, considering the fact that 23,500 will be acting as some sort of a local maxima, and यहाँ पे जो है 23,100 will be acting as some sort of a local minima. तो 23,300 straddle को छोटे साइज से हम लोग होल्ड करना चाहिए, 200 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड एंड 200 पॉइंट्स ऑन द डाउनसाइड. बट इतना आसान भी नहीं है इस चीज़ को होल्ड करना, बिकॉज 100 रुपीज़ का जो कॉल एंड पुट प्रीमियम है, एट वन पॉइंट वन विल बी ट्रेडिंग एट 210 रुपीज़ एंड अदर विल बी ट्रेडिंग एट 30 रुपीज़. सो यू हैव टू बी विलिंग टू होल्ड ऑन टू दिस काइंड ऑफ एन एसिमेट्रिक पेयर. तो ऐसे पेयर अगर होल्ड करने का आपके पास क्षमता है, आपके पास रिस्क एपेटाइट है, तो देन 23,300 straddle would be a best bet if the market starts trading around 23,300 with the straddle pricing around 200. अगर 200 से नीचे खुलता है, तो देन इवन मार्केट्स 23,300 के एक सेंटर पॉइंट पे ट्रेड करने के बावजूद भी हम उस straddle को ट्रेड नहीं कर सकते. एट दैट पॉइंट वी शुड बी स्टार्ट कंसिडरिंग सम स्ट्रैंगल्स. OTMs पे हम लोग डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड करना है तो कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे मुझे एक रेंज नज़र आ रहा है. बट एट द सेम टाइम यू नोटिस हाउ वोलेटाइल द एक्सपायरीज हैव बीन, एंड कल के लिए एक अगेन बुल ट्रैप अगर हो जाता है, तो बेसिकली अ लॉट ऑफ पीपल वुड हैव बीन गोइंग लॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे पोजिशनल लॉन्ग्स ट्रिगर हो गए रहेंगे, बिकॉज 22,200 से लेकर 22,800-900 तक ऑलमोस्ट 800-900 पॉइंट्स का एक रैली मार्केट्स में देखने को मिला है. तो इफ द मार्केट्स हैव टू ट्रैप द बुल्स अगेन, देन मार्केट्स अगेन फिर से कल एक बड़ा गैप डाउन के साथ खुलने वाला है, एंड दैट विल बी अगेन अ ट्रिकी सिनेरियो, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो रेंज, एक वैलिड रेंज जो है, दैट इज समवेयर अराउंड 22,500 एंड 23,000, फिर से 500 पॉइंट का एक वाइड रेंज मार्केट्स में देखने को मिलेगा. बट जैसे कि फर्स्ट 1 आवर ऑफ इनिशियल बैलेंस फॉर्म हो जाएगा, देन वी कैन सेफली अज्यूम दैट जो 90 मिनट्स का जो इनिशियल बैलेंस है, अगर वो 90 मिनट्स का इनिशियल बैलेंस 200 पॉइंट के अंदर है, तो वी कैन अज्यूम दैट जब तक ये ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं होता है, तब तक इस रेंज को ही हम लोग ट्रेड कर सकते हैं इन अ डेल्टा न्यूट्रल वे. बट अगर एक बड़ा गैप डाउन खुलता है, तो देन what we can do is we have to wait for the first 90 minutes, and उसके पहले हम लोगों को ट्रेड नहीं लेना चाहिए, because this dip can either be bought or that can actually lead to further liquidation of these positional longs which will lead to further downfall. तो कहाँ पे मार्केट्स आ सकता है वो किसी को पता नहीं है. अगर आप लोग
एक तुक्के से के साथ अगर खेलना होता है तो देन दैट्स अ प्योर गैम्बल. तो अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो देन आई विल बी वेटिंग फॉर द फर्स्ट 90 मिनट्स ऑफ प्राइस एक्शन, नॉट 15, नॉट 30. आई विल वेट फॉर द फर्स्ट 90 मिनट्स. लेट द मार्केट गिव मी अ पर्टिकुलर रेंज, एक प्रॉपर वैलिड रेंज मार्केट्स मुझे देने दो, एंड उस रेंज के अंदर मैं ट्रेड करना प्रेफर करूंगा इन केस ऑफ अ बिग गैप डाउन. अगर मार्केट फ्लैट खुलेगा देन आइडियली विथ 15% टू 20% ऑफ द साइज में 23,000 पे मैं स्ट्रैडल बिल्ड करने के लिए ट्राई करूंगा. अगर मार्केट 22,900 पे आता है तो देन मैं एक एसीमेट्रिक 23,000 पे स्ट्रैडल बिल्ड करूंगा. मार्केट्स अगर 23,100 पे आता है फिर से एसीमेट्रिक तरीके से एक 23,000 पे स्ट्रैडल में बिल्ड करना पसंद करूंगा, बिकॉज दिस इज जस्ट अ प्योर बेटिंग ऑन द पिन ऑन अ राउंड नंबर ऑन एन एक्सपायरी डेट. 23,000 राउंड नंबर पे कल एक्सपायरी हो सकता है, उसका एक आशंका है. बट एट द सेम टाइम आई कैन नोटिस दैट मार्केट्स ने कॉन्टिन्यूसली लाइक 1, 2, 3, 4, 5 बैक टू बैक 5 डेज एक वाइड रेंज डेज दिया है. मिनिमम 500 पॉइंट का एक डे का रेंज बना है. सो एक्सपेक्ट एटलीस्ट 300 टू 400 पॉइंट डेज रेंज टुमारो एज वेल. सो उसके हिसाब से हम लोगों को ट्रेड प्लान करना चाहिए. तो बाय एनी चांस 930 के पहले अगर 170 के नीचे अगर स्ट्रैडल ट्रेड करना शुरू हो जाता है देन थिंक ट्वाइस बिफोर सेलिंग द ऑप्शंस, एंड हम लोगों को वेट करना पड़ेगा मार्केट्स को हमारे लेवल्स के आसपास आने के लिए, एंड वहां पे हम लोग आके ट्रेड कर सकते हैं. नाउ अगर एक बड़ा गैप अप का सिनेरियो आ जाता है, लेट्स से लाइक वी ओपन समवेयर अराउंड 23,250 और 23,300, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आईड अगेन टेक दैट हाई रिस्क रिवॉर्ड वाला बेट, विच इज द फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल फॉर्म होते ही उसका लो ब्रीच होते ही मैं बेरिश ट्रेड लूंगा विद द हाई ऑफ द कैंडल एज सम सॉर्ट ऑफ अ स्टॉप लॉस. बट अगर एक बड़ा गैप डाउन खुलता है एंड स्ट्रैडल अगर 220 के ऊपर रहता है तो देन जहां पे मार्केट्स खुलेगा तो फर्स्ट 1 मिनट के आसपास मार्केट्स जहां पे ट्रेड करता रहता है, 916 पे मार्केट जहां पे ट्रेड करता रहता है, उसी स्ट्राइक पे मैं थोड़ा बहुत स्ट्रैडल क्वांटिटी में सेल करना पसंद करूंगा, बिकॉज आई एम गेटिंग अ डिसेंट अमाउंट ऑफ IVs. So these are my scenarios, and since tomorrow Trump is saying that Tuesday के दिन मैं power plants को मैं target करने वाला हूँ, and desalination plants को मैं target करने वाला हूँ, and खर्ग आइलैंड को मैं target करने वाला हूँ. So अगर वो चीज़ हो जाता है and if it happens during our market hours, then expect some sort of rapid spikes in both the sides. So tomorrow my approach would be to trade with probably 20 to 30% of the size and probably 30 to 40% of my day's risk appetite. So that would be my approach. अगर कल के लिए कल का एक्सपायरी स्किप भी करना है तो I don't think there is any harm in that. Probably it's a prudent way to actually save yourself from the butchering. But each to his own. अगर आपको ट्रेड करना ही है, ट्रेड विथ स्मॉलर साइज एंड वेट फॉर द मार्केट्स टू कम टू योर लेवल्स, एंड डोंट जस्ट सिंपली गो एंड सेल स्ट्रैडल्स, बिकॉज फंसने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ना प्रीमियम्स आपको अच्छा मिल रहा है एंड ना मार्केट्स आपको राहत दे रही है. सो आई विल सी यू आफ्टर टुमारोज एक्सपायरी. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.